Let me be very honest with you. No one really cares. Maybe you already know this fact. Maybe you have forgotten about this. Let this be a reminder that no one truly actually cares. There's going to be tears of people who care to a certain degree about you. Like, I like to believe that there are circles around you, and depending on the kind of relationship that you have with people, they're going to behave differently and they're going to perceive you differently and give the same kind of similar kind of energy back in the relationship. For example, your family, your immediate family, if you're close to people in your family, you're going to find themselves caring more about you rather than some random stranger on the street, for example. And if at all that is true, then also द केयरिंग पार्ट विल ओनली बी अप टू एन एक्सटेंट. ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा 100% हर कोई आपकी लाइफ में इन्वेस्ट कर पाएगा और उसी तरीके से केयर कर पाएगा जैसे आप अपने बारे में करते हैं. क्योंकि सोच के देखो, आप थोड़ी ना किसी के बारे में 100% केयर कर पाते हैं बियॉन्ड वट एवर यू नीड टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, द ड्यूटीज यू नीड टू फुलफिल इन अ गिवन डे. कहाँ टाइम मिल पाता है, आपका इंटेंशन होगा बट आप नहीं कर पाते हैं. ये टॉपिक, ये लेसन मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ इन माय अनदर वीडियो. आई एम गोइंग टू लिंक दैट, बट दिस इज जस्ट एन एक्सटेंशन. टुडेज लेसन इज जस्ट एन एक्सटेंशन टू दैट पार्ट. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम ना चाहते हुए भी कितना भी सोच रहे हैं, नहीं ये थॉट को इम्बाइब कर पा रहे हैं, नहीं इस थॉट को इनकलकेट कर पा रहे हैं अपने अंदर कि सही में बहुत ज़्यादा फर्क लोगों को नहीं पड़ता है. और उसी का एक एक्सटेंशन है. दिस इज लेसन नंबर 16 इन 30 lessons for 30-year-old me. People's opinion of you is none of your business. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Pooja. I hope you guys are doing good. Welcome back to another lesson in 30 lessons for 30-year-old me, a series that I'm doing as a recently turned 30-year-old software engineer. I have had a very tumultuous past personally, and I have had a lot of difficulties, struggles turning up till 30 with my mental health, and because of that I have some lessons to impart. This is what I'm doing here. So if you're tuning in for a little bit of insight in someone's life, hoping to get something out of value by the end of it, this video is going to be for you. This series is also for you. I just don't want the kind of mistakes that I did leading up to my 30s everyone else make them, and these are very small things that we so often overlook. Eventually we end up being very miserable in a very beautiful, very privileged life that we live. I took my own share of, going down the spiral and going down the rabbit hole of thinking my life is not worth living, thinking my life isn't what it actually was. The beauty lies in the little things, and if only I remember these little lessons, I would have been able to make something more beautiful out of it. Now the time is gone. All I can do is impart this little lesson teaching to the next person and hope they don't make the same kind of mistake. So by the end of this video, if you like it, please remember to like it, share it with your friends and family you think might benefit from this video. Comment down below what you think of this series, what you think of this lesson, and subscribe to the channel if you haven't already. With that out of the way, let's get into today's topic. Why people's opinion of you is none of your business. I am going to start with a little story about myself. मैं बचपन से ही थोड़ा सा आउटकास्ट फील करती हूँ, और ये फीलिंग शायद मेरी फीलिंग थी, लोग मुझे ऐसा नहीं करा रहे थे या एक्चुअल में करा रहे थे, अब मैं उसमें जाना नहीं चाहती, बट ये मेरी फीलिंग थी. मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं अपने में ज़्यादा रहना पसंद करूँगी, और मैं रहती भी अपने में थी. बहुत सारे लोग मुझे समझ नहीं पा रहे, इफ्स एंड बट्स. एंड उसके बाद जब मैं कॉलेज गई, तब वहाँ पे मेरे को और ऐसी सिचुएशंस मिली जहाँ पे मुझे लगा, जहाँ पे मेरे को फिर से वही फीलिंग और ज़्यादा घर करने लगी, और ज़्यादा मैंने एक्सपीरियंस की बिकॉज ऑफ हाउ थिंग्स वर गेटिंग अराउंड मी. आई फील व्हेन वी आर यंगर वी आर not very mature enough to know the worth of relationship, friendships. We are very finicky, a lot of drama is happening. Sometimes I am also toxic, sometimes others might also be toxic. All of these things are happening and you are not able to feel like you belong somewhere. I was also feeling homesick when I just left my house. All of these things accumulated into me feeling like an outcast again, and I developed a severe case of social anxiety, and I have had social anxiety for years up until my
अर्ली 20s। सो मुझे नहीं समझ आता था मैं क्या बोलूँ लोगों से, किस बात पे डिस्कशन करूँ, और अगर करूँ भी तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा, ये थॉट मेरे दिमाग में हमेशा चलता रहता था। अभी नहीं, एक किसी से बात कर रहे तभी नहीं, बाद में घर आ रहे तभी भी मैं सारे कॉन्वर्जेशंस को अपने दिमाग में रन कर करके सोचती रहती थी कि वो मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया है, या फिर मैं अच्छी फ्रेंड हूँ या नहीं, मैंने सही से रिस्पॉन्ड किया या नहीं, या फिर ऐसा ना हो कि वो मेरे बारे में जो भी सोच लें उसकी वजह से हमारी फ्रेंडशिप अफेक्ट हो जाए। तो ऐसा सोचते सोचते मैं और ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट होती गई, क्योंकि जितना भी बार मेरे को लगता था कि मैं क्या बोल रही हूँ, उतने ही बार मैं अपने आप को स्टॉप कर रही होती थी वो बोलने से जो मुझे एक्चुअल में बोलना होता था, और जो मेरी रियल पर्सनालिटी है वो कभी भी बाहर नहीं आ पा रही थी। तो जो रिसीविंग एंड पे लोग हैं उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरी क्या एक्चुअल पर्सनालिटी है, क्योंकि मैं इतनी अंडर कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। तो इसमें फिर उनकी गलती नहीं है, वो मेरे बारे में कुछ भी सोचे बेसिस द डेटा पॉइंट दैट आई एम गिविंग देम। सो अगैन इट इज़ काइंड ऑफ लाइक अ वियर्ड सिचुएशन, इफ यू कैन इमेजिन, कि वो लोग अगर चाहें भी तो नहीं समझ पा रहे मुझे, और मैं चाहती हूँ कि कोई मेरे को समझे। तो उसके लिए सोशल एंजाइटी सबसे वर्स्ट चीज़ है। ये सोशल एंजाइटी और एरियाज ऑफ माई लाइफ में भी रिफ्लेक्ट करे, जैसे मेरे जॉब पे, जैसे जस्ट बीइंग फंक्शनल व्हेन यू गो आउटसाइड टॉकिंग टू अदर फोक्स, लाइक आप कस्टमर केयर से बात करना चाहते हैं या फिर अपने ऑफिस में प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डॉन्टिंग लगने लगी मेरे को, और जब वो डॉन्टिंग लगती थी तो rather than fixing it, I would just get into this loop of I can't do it. I really can't do it, because if I will present myself on a space, I will present myself on the stage, then I am not sure what others are thinking of me, and I really don't want to be in that situation. Truth of the matter is, you will need to do some things to be successful in life. You need to present yourself to the best of your capabilities. You also need to present yourself आप असली में क्या हैं, तभी तो आप अपने इंटरेस्ट और अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स बना पाएंगे, तभी तो आप ऑफिस में या वर्क प्लेस में अपना बेस्ट, जितना आप हार्ड वर्क कर रहे हैं उसको दिखा पाएंगे, और एक नया स्किल भी सीख पाएंगे विच इज़ कम्युनिकेशन स्किल। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तभी तो आप विदाउट एंजाइटी कुछ चीज़ें इंजॉय कर पाएंगे घर से बाहर जाके, वरना तो आप घर में ही रहेंगे। जितना ज़्यादा सोचते रहोगे बाकी लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उतना ज़्यादा आप उस थॉट को इतना इम्पोर्टेंस दे देंगे अपने दिमाग में कि आप डिसफंक्शनल भी हो सकते हैं, और आप एक लेवल पे आ सकते हैं जहाँ आपको कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, या कुछ भी एक एंजाइटी इंड्यूसिंग एक्सपीरियंस लगेगा। इसी का नाम सोशल एंजाइटी होता है। और मैं ये कहना चाहती हूँ इसके उस पार, जहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें स्ट्रगल करके, बहुत सारे प्रोसेसेस बना के उसके अराउंड जब मैं निकल पाई हूँ उससे, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा एक हैपनिंग लाइफ दिख रही है, एक बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जो भी मेरे ड्रीम्स थे वो पूरे होते हुए दिखने के। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने एक मेंटल बैरियर जो मेरे दिमाग में था उसको ओवरकम करा, उसको चैलेंज करा, और उससे बड़ा कॉन्फिडेंस लाइफ में क्या हो सकता है। अब मैंने कैसे उसको ओवरकम किया, मैंने एक दो थॉट्स थे जो मेरे दिमाग में आए, तो कैसे मैंने इस मेंटल ब्लॉक को अप्रोच करा, कैसे मैंने समझा कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, और अगर मैं ऐसा कर रही हूँ तो क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या चीज़ मेरे लिए सही है, किन चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और कैसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो चलो अब उस पे आती हूँ मैं। वो हम लोग कैसे कहते हैं कि जितने लोग उतनी बातें, ये बात पता तो सबको होती है, बट ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना इतना मुश्किल होता है। अगर इतना ईजी होता तो बात ही क्या होती, सभी लोग किसी और के बारे में नहीं सोच रहे होते। मैं ये नहीं कह रही आप बिल्कुल भी एफर्ट नहीं मेक करें फ्रेंडशिप्स मेंटेन करने के लिए, रिलेशनशिप्स, अपना इन्वायरमेंट मेंटेन करने के लिए, एक सहजता के साथ वो करें, एक समझदारी के साथ वो करें। पर जब एक बात आए, एक चॉइस आए कि मैं ये चीज़ क्या लोगों के ओपिनियन के लिए कर रही हूँ, या फिर मैं इसलिए कर रही हूँ कि मुझे किसी की वैलिडेशन चाहिए, तो क्या ये सही तरीका है मेरा करने का। दूसरी चीज़, या फिर मैं अपने आप को रोक रही हूँ कुछ चीज़ करने से जो मुझे सही में करनी है, जो मुझे पता है मेरे लिए अच्छी है, वो सिर्फ मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी के वैलिडेशन या जजमेंट का डर है। तो अगर वो है तो बिल्कुल उस बात को हटा दो, और उससे आगे बढ़ के ही आपको जो करना है आप वो कर पाएंगे ना। ज़िंदगी बहुत छोटी है ये सब चीज़ें सोचने के लिए, आपको जो करना है वो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि
ज़िंदगी बहुत छोटी है, इन छोटी छोटी चीज़ों में फंसे रहोगे तो समय निकल जाएगा। समय का पहिया अपने हिसाब से चल रहा है, आप उसको नहीं रोक सकते। आप सोचने में अपना समय व्यतीत कर सकते हैं या फिर एक्चुअली करने में, इन चीज़ों से उभरने में और अपनी लाइफ को एंजॉय करने में, छोटी छोटी चीज़ों में, बड़ी बड़ी चीज़ों में, बड़े बड़े ड्रीम्स में। तो ठीक है, ये बात बोलने में तो बहुत अच्छी लग रही है, करेंगे कैसे। मुझे बहुत समय लगा ये समझने में, पर जिस दिन मेरे को समझ आ जाता है, मुझे समझ आ जाता है ये बात मेरे बारे में बहुत अच्छे, मुझे अप्रिशिएट करना चाहती हूँ मैं अपने बारे में ये बात। जब मैंने ये पर्सपेक्टिव फ्लिप करा कि पूजा तुम इतना ज़्यादा क्यों सोचती हो लोगों के बारे में, क्यों सोचते हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, मुझे समझ आया कि एक पास्ट बैगेज है, एक पास्ट ट्रॉमा है, उसकी वजह से मैं सोच रही थी। सबसे बड़ी बात, आज तो वो नहीं है, वो सच तुम्हारा आज नहीं है। जो पीछे रह गया उसको पीछे रहने दो और आगे बढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि ज़िंदगी में तुम्हें आगे बढ़ना है ना। सेम चीज़ों के बारे में सोचकर क्या फ़ायदा। दूसरी बात, अगर मैं बार बार ये सोच रही हूँ कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, तो क्या वो ट्रूथ है। कभी कभी हमारा दिमाग एंजाइटी में या फिर हमारे फियर्स की वजह से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा एक नैरेटिव क्रिएट कर देता है कि हाँ, तुम्हें जो लग रहा है वही सही है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी एंजाइटी का मतलब ही ये है कि एंटिसिपेट करना। एंटिसिपेट का मतलब ये नहीं होता है ट्रूथ के अंदर। हमें उस गैप को फिल करके समझाना पड़ेगा अपने दिमाग को कि अच्छा ठीक है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, पर क्या वो असली में सच है, रियल वर्ल्ड में सच है। कभी कभी ये सच नहीं होता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला, बहुत सारे लोग केयर भी नहीं कर रहे हैं आपके बारे में। आपको ऐसा लग रहा है कि आप सेंटर ऑफ अटेंशन है इस पूरे यूनिवर्स के, क्योंकि आपके लिए आप है, आपको समझ आ रहा है मैं क्या एक्शंस कर रही हूँ, क्या बिहेवियर्स है मेरे, और आपको ऐसा लग रहा है जो मुझे खुद में कमी दिख रही है वो किसी और को भी दिख रही है उसी सेंस में जैसे मुझे दिख रही है। ऐसा ट्रू नहीं है। हम जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे हम अपना एक व्यू पुट करते हैं, हमारा एक तरीका होता है, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ सिचुएशन एनवायरमेंट यू आर इन और द काइंड ऑफ रिलेशनशिप दैट यू हैव। इन दैट कॉन्टेक्स्ट, द कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज हाउ द अदर पर्सन इज परसीविंग यू। इन दैट कॉन्टेक्स्ट इफ यू फाइंड योरसेल्फ थिंकिंग यार वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, तो वो नहीं सोच रहे हैं ज़्यादा। और अगर वो सोच रहे हैं तो मैंने कैसे कॉम्बैट किया, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों से मुझे ये बात समझ आई। सबसे पहली बात तो तुम जो सोच रही हो कि वो तुम्हारे बारे में पूरे समय क्या सोच रहे हैं, तो सोचने दो उनको। अगर वो सोच भी रहे हैं, क्या वो बायस, क्या वो जो ओपिनियन है या फिर वो एक जजमेंट है, वो तुम्हारी लाइफ अफेक्ट कर रहा है। really get down to the bottom of it, that how is it actually affecting your life. If it is just an opinion, then so be it. They have a right to their opinion. It is none of your business to know what they think of you in what parameter. We also talked about this in a different video, that thoughts and actions are two different things. So अगर उनके thought बहुत flowing है और वो इस moment में तुम्हारे बारे में कुछ सोच रहे हैं, क्या पता वो चीज़, वो opinion कल उनका चेंज हो जाए। कब तुम्हें ज़्यादा उस बारे में सोचने की ज़रूरत है, तब तुम देखो कि वो जो थॉट्स है एक्शंस में तब्दील हो रहे हैं और एक बायस क्रिएट कर रहे हैं तुम्हारे लिए या तुम्हारे अगेंस्ट। अगर वो बहुत ज़्यादा तुम्हारे अगेंस्ट क्रिएटेड है और वो तुम्हारी लाइफ अफेक्ट करने लग गया है, तो तुम्हें उस चीज़ को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है ये तुम्हें पता है, या तो तुम्हें वहाँ से चले जाना है, उस सिचुएशन को पूरा कट ऑफ कर देना है अपनी ज़िंदगी से, या फिर उसी सिचुएशन में मैनेज करना है, डिपेंडिंग इफ इट इज़ योर वर्क प्लेस, इफ इट इज़ अ फ्रेंडशिप, इफ इट इज़ एन ओल्ड फ्रेंडशिप। All of these negotiation you need to do whatever time you need to invest, but the important part is you need to think of it in the perspective of what is the thought and what is the action. And whenever you feel like कि अच्छा यार वो सोच भी कैसे रहा है मेरे बारे में ऐसा, तो तुम खुद अपने गिरेबान में थोड़ा झांक के देखो, तुम किसी के बारे में कितनी चीज़ें सोचते हो पूरे दिन में। इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि तुम जाकर ही actions करने लगते हो that are against someone or that shows that you are judging that other person. You need to have that kind of maturity, right? So if you are giving yourself that grace, that forgiveness कि तुम कैसा भी सोच सकते हो, इसका मतलब ये नहीं तुम बुरा मीन करते हो, तो दूसरे पर्सन को भी वो ग्रेस दो। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, there are so many these questions, there are so many these trivias, these random fun questions that people say, what is the one superpower that you want to have? Some people would say, I would like to know what others think of me. Listen, this is a philosophy that I implement and execute very strongly in my life. Do not ask questions you don't want answers to. You can never be sure what others think of you. You need to think of the physical realm as being a physical realm.
where actions determine a lot of the courses of your life and how it is affecting your life. And thoughts are on a parallel plane, they are on a very subjective plane, so let that flow. And it is very vague, right? All of these thoughts are very vague. You cannot determine, you can't control, you cannot even control the other people's opinion of you, but you can control how these actions are affecting you. And as I said, your opinion of others is none of their business, their opinion of you is none of your business. It is as simple as that. सबको अपने आप में राइट है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इफेक्टिवली आपकी लाइफ इफेक्ट ही कर रहे हैं। और कभी कभी आपको भी थिक स्किन रखनी पड़ेगी कि ठीक है, अगर हो भी रही है इफेक्ट तो मुझे एक तरीका निकालना है जहाँ वो मुझे इफेक्ट ना करे। वो कैसे निकालना है कि उन्हें सोचने दो। जब तक कुछ एक्शन नहीं है ऐसा जो मेरी लाइफ के लिए डेट्रीमेंटल है, तब तक मैं अपने स्पेस में आई विल प्रोटेक्ट माई पीस, I will have a strong boundary if it comes to that, and if needed I will need to cut off that relationship, then I need to move on. But it doesn't mean I need to fight every battle in my life, because you need to be careful with your energy. Sometimes it doesn't matter being right, it matters that you are at a place where you feel peaceful, you are at a place where you are enjoying and rather using that time doing something that you enjoy doing, because time is limited. You can either spend it fixing all of these threads and fixing and controlling what others think of you, or you can just sit in peace, use that time wisely and understand कि चलो यार उनको सोचने दो, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। फर्क भी पड़ा है तो मैं क्यों अपने ऊपर फर्क पड़ने दूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ने दे रहा है, मेरे पास और इम्पोर्टेंट चीज़ है करने के लिए। तो जब मुझे ये बात समझ आने लगी, धीरे धीरे मैंने इसको प्रैक्टिस करा, और उसके बाद कैसे प्रैक्टिस करा जिससे इफेक्टिवली आज मैं बिल्कुल भी नहीं सोच पाती हूँ। मेरे को अभी भी बहुत बार थॉट्स आता है, तो मैं एक तरीके से पहले प्रोसेस करती हूँ और फिर उसको इम्प्लीमेंट करती हूँ। कुछ चीज़ें जो आपको हेल्प कर सकती है इम्प्लीमेंट करने में और इस थॉट को, इस लेसन को अपने लाइफ में इनकलकेट करने के लिए, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं।